یہ ہر بار لڑکی کو ہی کیوں قربانی دینی پڑتی ہے؟ میں ہی کیوں؟ میں نے نہیں کرنی اس خڑوس سے شادی۔ پورے خاندان میں آ جا کے میرے لیے وہی سڑو اور خڑوس رہ گیا ہے، دلکش منہ بناتی بولی، جبکہ اب اس کی زبان مزید فراوانی سے چلنی باقی تھی۔ تھوڑا کنٹرول کر لو اپنی اس خرافاتی زبان پہ، تمہارے داجی نے سنا تو غضب ہو جانا ہے۔ اس کی والدہ تبسم بیگم نے اسے چپ کرانا چاہا۔ ہاں بس مجھے ہی چپ کرواتے رہنا، میرے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور داجی سے کہہ دیں مجھے اس کے خڑوس پوتے سے شادی نہیں کرنی۔ ہر وقت منہ پہ 12 بجے رہتے ہیں، مجال ہے کہ کبھی کسی نے انہیں مسکرا کے بات کرتے دیکھا ہو۔ ہر وقت سڑی شکل بنا کے رہتے ہیں جسے رومانس کا بالکل نہیں پتہ۔ ایسے بندے سے کوئی پاگل لڑکی ہی شادی کرے گی۔ وہ تو رخ پھیرے اپنی بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ یہ تک پتہ نہ تھا کہ اس کی ماں اندر آئے فرجاد شاہ کے اشارہ کرنے پہ وہاں سے جا چکی تھی، اور دلکش کے اپنے بارے میں نادر خیالات سن کر فرجاد کے دماغ کی رگیں بھڑکی تھیں۔ وہ تھی کتنی، صرف 18 کی، ابھی میکاٹ جوائن نہیں کی تھی، اور اسے رومانس بھی چاہیے تھا۔ فرجاد شاہ کا دماغ تو صحیح معنوں میں گھوما تھا۔ آج ہی داجی نے اپنی خواہش کا اظہار اس سے کیا تھا جس پہ وہ انکار کر چکا تھا، اور اس سے 10 سال چھوٹی تھی، اور وہ ایک انمیچور لڑکی کی کسی صورت اپنی بیوی نہیں بنا سکتا تھا۔ لیکن داجی کی ضد پہ وہ فی الحال چپ کر گیا تھا اور سوچنے کا وقت مانگا تھا۔ وہ یہاں تبسم بیگم جو اس کی چچی جان تھی، ان کے پاس کام کاج سے آیا تھا، اور اب یہاں آ کے اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ بس فیصلہ ہو گیا، اب مجھے کوئی مجبور نہ کرے اس ہٹلر سے شادی کرنے کے لیے۔ وہ پلٹی تھی کہ اس کے الفاظ منہ پہ ہی دم توڑ گئے۔ حلق نے جیسے ہی کچھ کہنے سے ہی انکار کر دیا۔ اسے اپنی آواز حلق میں دبی ہوئی محسوس ہوئی۔ سامنے ہی وہ جلاد ہٹلر کھڑا اسے گھورے جا رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہی تھی؟ پھر سے بولنا۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ طے کرتا ماتھے پہ بل ڈالے اس کے پاس ہوا۔ تو نہیں تو کچھ بھی نہیں؟ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں۔ وہ گھبرا کے 4 قدم پیچھے ہٹی۔ باہر زور سے بادل گرجے تھے، ایسے ہی بادل دلکش انداز میں گرج رہے تھے۔ تمہیں شرم لحاظ ہے یا نہیں؟ کیا خرافات دماغ میں پال رکھی ہے؟ تمہاری ایج ہے ان سب باتوں کی؟ وہ اسے ہمیشہ کی طرح سے غصہ لتاڑ رہا تھا۔ ایج تو میری شادی کی بھی نہیں۔ وہ پیچھے ہوتے سے کافی فاصلے پہ ہو چکی تھی، لیکن کسی کو وہ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ دور جاتے بھی اپنی زبان کے جوہر دکھانے سے باز نہ آئی۔ تمہیں تو میں شادی کے بعد تیر کی طرح سیدھا کروں گا۔ بہت پر پرزے نکل آئے ہیں، بہت اچھے سے۔ تمہارے سارے کس بال ٹھیک کروں گا۔ وہ اسے دھمکی لگاتا پیچھے ہٹا۔ ایسے ہی ٹھیک کر لیں گے، میں ڈرتی نہیں آپ سے۔ اس سے کافی فاصلہ پہ ہوتے وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ڈرنا کیا ہوتا ہے؟ شادی کی پہلی رات تمہیں بتاؤں گا چچی جان، چچی جان۔ وہ وہیں سے تبسم بیگم کو آوازیں لگاتا انہیں باہر بلانے لگا۔ کیا ہوا فرجاد بیٹا؟ وہ گھبرائے بولی، چچی جان آپ اسے تیار کریں، میرا نکاح اس سے آج ہی ہوگا۔ داجی کو بتا دیتا ہوں اور اپنی رضامندی بھی دے دیتا ہوں، آپ تیاری کریں۔ وہ پل میں فیصلہ کر گیا۔ نہیں نہیں، آپ ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے، میں نہیں کروں گی آپ سے نکاح۔ وہ غصہ سے بولتی اس کے پاس چلی آئی۔ فرجاد نے بمشکل خود پہ قابو پایا۔ چچی جان اگر اس نے کوئی بھی بکھیڑا ڈالا تو اسے مجھ سے کوئی نہیں بچا پائے گا، اس بار معافی نہیں ملے گی۔ وہ اسے وارن کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ امی میں کہہ رہی ہوں مجھے اس خڑوس جلاد سے شادی نہیں کرنی۔ چٹاک تبسم بیگم کا ہاتھ اٹھا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ماں کو آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ تم بس بیوہ ماں کی عزت کو نیلام کر دو اور کچھ نہیں۔
इस बुढ़ापे में अब तुम मुझे बर्बाद करने पे तुली हुई हो। क्या इस दिन के लिए अल्लाह से रो रो के दुआ मांगी थी? अल्लाह ने हमें बेटी की रहमत से नवाजा। वो बेइंतहा दुखी हो रही थी। शौहर की वफात के बाद वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैके में ले दे के एक भाई था जो बीवी का गुलाम था। दिलकश इस वक्त 5 साल की थी और एक बेटी के साथ। उन्होंने तबस्सुम बेगम को कबूल न किया। इद्दत के बाद वो वापस अपने ससुराल आ गई। मैं और दादी की ख्वाहिश पे हवेली का एक हिस्सा इनके नाम मख्तस कर दिया गया जो उनका हक था। पर दादी से तबस्सुम बेगम ने कभी कोई डिमांड ना की, बल्कि वो हर माह एक अच्छा खासा अमाउंट दिलकश के अकाउंट में भेज देते थे, जो बकौल उनकी बेटी के होने के नाते उनका हक था। घर का सारा राशन खर्चा दादी ने ही उठाया हुआ था। शुरू में दादी ने चाहा कि वो भी बाकी घर वालों के साथ मिलकर रहें, लेकिन तबस्सुम बेगम की अना और खुददारी ना इजाज़त न देती थी कि वो किसी चीज़ से अपना हक नहीं समझती थी। फिर भी दादी हर तरह का उनका ख्याल रखते थे और अब सबसे बढ़कर उन्होंने दिलकश के लिए सबसे होनहार पोते का फरजाद हुसैन का इंतखाब किया था। बजाय इसके इनकी बेटी अपने दादी की शुक्रगुजार होती, वो अपना उल्टा अपनी ज़बान की जोर अफशाई दिखा रही थी। अब वो रो रही थी, जबकि पास ही खड़ी दिलकश भी आंसू बहा रही थी। अम्मी वो उनके घुटनों पे हाथ रखे बैठी थी। वो फिर भी रोए जा रही थी। अम्मी रोए तो ना अच्छा कर लूँगी निकाह, बस अब खुश। वो रोते हुए लौटे अंदाज बोलती गई, मैंने बहुत आजमाइशें देखी हैं दिलकश। तुम्हारे बाबा के जाने के बाद अकेले तुम्हें अपने पास रखा, कोई और ठिकाना नहीं था। तुम्हारे दादी भी ना रखते तो कहाँ जाते? हम ये उनका एहसान था कि उन्होंने हमें पनाह दी, लेकिन अम्मी बाबा भी तो दादी के बेटे थे ना, फिर उनका भी तो हक था इस जायदाद पे। आप हमेशा ये क्यों कहती हैं कि दादी ने हम पर एहसान किया है? क्योंकि तुम्हारे बाबा ने अपना हिस्सा दादी से ले लिया था और अपना अलग कारोबार शुरू किया था, पर वो सारा डूब गया। इसी परेशानी में उन्हें हार्ट अटैक आया था, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और हमें उनका दिल आज एक बार शोर को याद करते ही बुरी तरह दुखा था। दिलकश ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। आज पहली बार तबस्सुम बेगम ने उस पे हकीकत आश्कार की थी। काश ना करती, अब तो वो अपनी नजरें झुकाए थी। हर चीज उनकी दी हुई थी, सर से पैर तक वो मुकम्मल उनके एहसान में डूबी हुई थी। उसे शिद्दत से इस बात का एहसास था, झूठी अना और अकड़ दिखा के वो मजीद अपनी नज़रों में गिर गई थी। तबस्सुम बेगम ने अपनी बेटी के गाल पे प्यार से छुआ जहाँ उसने थप्पड़ मारा था, और फिर अपने हाथ को देखा। सर नफी में हिलाती वो बस अफसोस करती रह गई। दिलकश फिर से उनके सीने से चिपकी। वो मासूम दुनिया के मकरू फरेब को क्या समझती? उसे तो बस जीवन साथी रोमांटिक सा चाहिए था, एक यही इसकी ख्वाहिशें थी, वरना उसे फरजाद से कोई मसला नहीं था। पर जो मसला था वो भी कुछ कम न था। वो कमरे में आता ही शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोल गया। रह रह के उसे दिलकश की बातों पे गुस्सा आ रहा था, ना के अंदर अदब लिहाज तमीज़ कुछ भी ना था। इंतहा दर्जे की बदतमीज़ लड़की थी जिसे दादी ने इसके लिए चुना था, और वक्त होता तो वो इसकी शक्ल भी ना देखता। लेकिन अब जब खुद कहरा के आया था तो पीछे नहीं हटने वाला था। उसे तो सीधा कर ही लेता। पहले दादी से जाके आज ही अपने निकाह का बताना था। यही सोचता वो दादी के कमरे की जाने बढ़ा। उसका अचानक यह मुद्दा सुनते वो बुरी तरह चौंके। लेकिन फरजाद बेटा, वो तो अभी कुछ दिन पहले ही 18 की हुई है और इतनी जल्दी आपने खुद ये ख्वाहिश की थी। दादी
اب میری بھی یہی خواہش ہے کہ نکاح آج ہی ہوگا اور رخصتی بھی آج کی ہی تاریخ میں۔ حسن شاہ اور سلطانہ شاہ بھی داجی کے کمرے میں آن موجود ہوئے۔ دوسری طرف ماریا پھوپھو کے دل میں ہول اٹھنے لگے جو شوہر کے ایکسیڈنٹ میں معذور ہونے کے بعد شاہ حویلی آن بسی تھی۔ ان کی بھی ایک بیٹی تھی نیلما، جس کے لیے ماریا پھوپھو کی شدید خواہش تھی کہ فرزاد سے اس کا نکاح ہو، پر آج انہیں یہ سب اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اندر داجی کے کمرے میں بہت دیر سے یہی باتیں ہو رہی تھیں اور پھر فرزاد کی بات مان لی گئی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی تیاری ہو رہی تھی۔ سلطانہ بیگم نے فوراً اسے اپنی خاندانی پوشاک دلکش بھیجی اور ساتھ ہی خاندانی زیورات اور بھاری بھرکم لہنگا جسے دیکھتے ہی دلکش کی آنکھوں سے نیر بہنے لگے۔ اسے بالکل دلہنوں کی طرح سجایا گیا تھا۔ تبسم بیگم نے اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ اس پہ بے انتہا روپ آیا تھا۔ وہ اس کا ماتھا چوم گئیں۔ مجھے پتہ ہے آج میری بیٹی مجھ سے ناراض ہے، لیکن آنے والے وقت میں تم خود کہو گی کہ تمہاری امی کا یہ فیصلہ صحیح تھا۔ اور وہ بہت مطمئن تھیں اور خوش بھی۔ کچھ ہی دیر میں داجی مولوی صاحب کے لیے اندر داخل ہوئے۔ اس کو بڑا سا گھونگھٹ اوڑھا دیا۔ دلکش امن بنت امن شاہ، آپ کا نکاح فرزاد شاہ ولد حسن شاہ سے 1 کروڑ حق مہر کا رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ آنسو پیتی ہچکی لیتی قبول ہے کہہ گئی۔ آج وہ اپنے تمام جملہ حقوق فرزاد کے نام کر گئی۔ نکاح مکمل ہوتے ہی سب دعا مانگنے لگے۔ مبارک ہو۔ سب طرف سے مبارکباد کا شور اٹھا۔ کیا اس نے چاہا تھا کہ اس کی شادی یوں ہو؟ وہ تو بہت دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ پہلے منگنی کا ارادہ تھا، پھر ڈیٹس مارنے کا، دوستوں سے اپنی ڈیٹس کو ڈسکس کرنا، منگیتر سے گفٹس لینا، تھوڑا شو مارنا، ایٹیٹیوڈ شو کرنا، سب کچھ دھرا رہ گیا۔ شادی میں مہندی بھی تو ہوتی ہی تھی۔ وہ تو مایوں بھی نہیں بیٹھی تھی، نہ کوئی مہندی لگی۔ وہ اپنے سونے ہاتھ دیکھتی کرب سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا گئی۔ انسان سب سے لڑ سکتا ہے لیکن اپنے نصیب سے نہیں لڑ سکتا۔ ماں کی دعاؤں تلے رخصت ہوتی۔ وہ فرزاد کے عالیشان کمرے میں پہنچا دی گئی تھی۔ اس کے جہاز سائز بڑے سے بیڈ پہ اسے بٹھاتے سلطانہ بیگم نے اس کا صدقہ اتارا۔ وہ اپنی کم سنی کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سلطانہ بیگم نے اس کے نہ کرنے کے باوجود بھی اسے دودھ اور جوس پلایا۔ وہ اپنی تائی جان کی محبت دیکھتی مزید شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ کتنی محبت کر رہی تھی اور دلکش کو ہمیشہ ایسا ہی لگتا تھا جیسے وہ دکھاوا کرتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد دلکش نے پورا کمرہ تنقیدی نگاہ سے دیکھا۔ یہ کمرہ یقیناً حویلی کا سب سے بڑا اور شاندار کمرہ تھا۔ ہر چیز کی قیمت اس کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ بہت ہی اعلیٰ ذوق رکھتا تھا، لیکن شاید شادی کے لیے وہ اپنا ذوق بالائے طاق رکھے۔ آج ہی ایک ایسی لڑکی کو اپنا کے لے آیا تھا جسے وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ اسے سزا دے رہا تھا یا خود کو، یہ تو اب وقت نے ہی طے کرنا تھا۔ کافی وقت گزر گیا، وہ نہیں آیا تھا۔ اب تو دلکش کے ہاتھ پیر بھی ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ اپنی ساری باتیں اسے یاد آ رہی تھیں۔ نہ جانے اب وہ کیا کرنے والا تھا۔ اس کے ساتھ رات کا آخری پہر تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ابھی تک اس کے بستر پہ دلہن بنی بیٹھی تھی، اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے اپنا ہی انتظار کرتا دیکھ کر وہ طنزیہ مسکرایا۔ آگے ہوتا، اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف پھینکتا، وہ سامنے ہی کنگ سائز صوفے پر بیٹھتا، ٹانگ پہ ٹانگ جما گیا۔ سگریٹ کو نکالتا، وہ اسے سلگاتے اپنے ہونٹوں میں رکھتا، گھونگھٹ میں اس دلہن کو دیکھ رہا تھا جو اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔
वो सर झटकने लगा। और नफरत करती थी तो वो कौन सा उससे इश्क करता था। ये निकाह तो उसने जिद में आकर किया था, इस चटाक पर की लड़की को सीधा करने के लिए, जो इसके बारे में कहीं भी कुछ भी बोल देती थी। काफी वक्त गुजर गया लेकिन उसने दिलकश से ना कलाम किया ना उसका घूंघट उठाया। दिलकश को वहीं बैठे बैठे अब नींद आने लगी थी। ऐसी सुहाग रात का किसने तस्वर किया था। कम अज कम दिलकश ने अपनी सुहाग रात का बहुत कुछ सोच रखा था। सबसे स्पेशल तो मुंह दिखाई का तोहफा होता था, पर यहाँ तो दूल्हा ही मनपसंद नहीं था तो मुंह दिखाई क्या मिलती थी सिवाय चार तलक बातों के। यहाँ आओ। अचानक से दिलकश के कानों से फरजाद की आवाज़ टकराई तो वो चौंकी। वो झट से अपना घूंघट उलट दिया और उसका नोकेज खिलता कयामत सा रूप देखता एक पल को फरजाद गुमसुम हुआ। क्या वो वाकई इतनी हसीन थी या उसे लग रही थी। ये असर एक लम्हे का ही था। अगले ही लम्हे वो उसे फिर से पुकार गया। सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ आओ। वो अब की बार धाड़ा। दिलकश सहम के उठती उसके पास जा खड़ी हुई। मेरे जूते उतारो। वो टेबल पे पाँव रखता अपना हुक्म सादिर कर गया। वह हैरानी से अपनी शहादत की उंगली का इशारा करती पूछने लगी, क्यों यहाँ कोई और भी है? तुम ही हो ना? तो तुमसे ही कहा है, वो हकारत भरे लहजे में बोला था। दिलकश ने गहरा सांस भरा। क्या आप मुझे खून बहा में लाए हैं? उसके इस अजीब सवाल पे फरजाद के माथे पे बल पड़े। अपनी जबान को लगाम डालो वरना वो गुस्से से खड़ा होता उसके मुकाबिल आया तो वो 2 कदम पीछे हटी। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं ये सब। वो भी दिलकश थी। अपने नाम की एक तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे जवाब दे सको। इसके लहजे की हकारत महसूस करते दिलकश की सुनहरी आंखों में आंसू भर आए। जानती हूँ आपके टुकड़ों पे पली हूँ। आज आपकी नज़र में मेरी हैसियत एक मुलाजिमा से भी कम होगी। वो आंसू जब्त किए बेलचक लहजे में बोलती, काफ़ी समझदार हो। चलो फिर बिना बहस के मेरे जूते उतारो। वो वापस अपनी जगह पे बैठता उसे गहरी निगाहों से देखता बोला। बहुत ही मुश्किल से खुद पे जब्त करते वो नीचे झुककर बैठी उसके जूते स्ट्रैप खोलने लगी। बेख्तियार इसकी निगाह दिलकश के खूबसूरत नशीब फराज से जा ठहरी, जो नीचे बैठकर झुककर इसके जूते उतारने में लापरवाही से अपने दूल्हे को मुकम्मल अपना दीदार करवा चुकी थी। फरजाद ने करंट खाते उसे पैर नीचे किए और झटके से खड़ा हुआ। क्या वाहियात ड्रेस पहना है? इतना खुला गला, शर्म नाम की कोई चीज़ है तुम्हें या नहीं? वो भड़का था। अगर वो यूं किसी और के सामने लापरवाही बरतती तो फरजाद हकीकत में उसकी जान ले लेता। उसकी बात पे वो अपने ब्लाउज का खुला गला देखती अपने सीने पे हाथ रखे उठ खड़ी हुई। ये तो ताई अम्मी ने दिया है। आज वो अंदर ही अंदर ढेरों शर्मिंदा हुई। उसे खुद भी एहसास हुआ शायद वो कुछ गलत कर गई है। क्या मतलब इस बात का? मेरी अम्मा की पसंद इतनी वाहियात नहीं हो सकती। वो उसको बाजू से पकड़े झंझोड़ गया। मेरा वो मतलब नहीं था। ताई अम्मी ने कहा था वक्त की कमी पे तो ये वो नाप वाला ड्रेस नहीं। शर्ट अप, चेंज करो इस वाहियात ड्रेस को। ऐसे पारसा बनकर रही हो जैसे अम्मा तुम्हें लहंगे की जगह बुर्का पहनाती तो तुमने वो कौन सा पहन लेना था। उसका हाथ झटकते उसे छोड़ता रुख फेर गया। वो इतने भारी भरकम लहंगे में इतना तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और सीधा काउच पे जा गिरी। अपनी इतनी तौहीन पे दिलकश की आंखों में रुके आंसू अब की बार बहने लगे। वो उन्हें रोक ना पाई। बमुश्किल अपनी जगह से उठते वो धीरे धीरे चलते हुए बाथरूम का रुख कर गई। उसे तो ये भी नहीं पता था इसका कौन सा ड्रेस यहाँ रखा गया है। वो बेध्यानी में वहाँ मौजूद इतने बड़े हाथ में एक ही कपड़ देखते इसकी जाने बढ़ी। इसको खोल कर देखने लगी लेकिन वहाँ तो सारे जेंट्स ड्रेसेस थे और वो कौन सा पहनती। अपने आंसू भूनती वो रोते हुए वॉश बेसिन की जानिब बढ़ते अपना चेहरा धोने की गर्ज से मुख्तलिफ टैप दबाए लेकिन कहीं से भी पानी नहीं आ रहा था। क्या फ़ायदा इतने बड़े बात का?
जब पानी ही नहीं, वो मुंह बनाती बड़बड़ाती। अब शावर टैप के नीचे खड़ी वहां से कुछ पानी के टैप खोलने लगी। न जाने कैसे इसका हाथ कहाँ जा लगा। रूफ शावर ऑन हो गया। ओह, ये कहाँ से बारिश शुरू हो गई। बंद हो जा। वो ऊपर रूफ शावर से गिरते पानी को देखते इसका टैप बंद करने की कोशिश कर रही थी कि उसके राइट तरफ से भी शावर से पानी गिरने लगा। कहाँ फंस गई मैं। वो अपना बड़ा सा दुपट्टा उतार कर एक तरफ हैंग करती मगर मुकम्मल भीगे हुलिये में सब टेप्स से बदनाम हो रही थी। कहीं से तो ये बंद होता ही ना था। एकदम गर्म पानी की बजाय अब ठंडा पानी आने लगा तो वो लरज उठी। प्लीज बंद हो जा वरना वो मुझे जाहिल भी कहेंगे। कभी ये सब यूज नहीं किया, क्या करूँ मैं। वो गहरा सांस भरते अपने हुलिये से यकसरंजान टैप के साथ लगी थी। अब तो बाकायदा लरज रही थी। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खोलने फरजाद अंदर दाखिल हुआ। अंदर सारे शावर ऑन देखता वो अपनी आंखें फैला गया। पागल हो गई हो क्या, सारे टैप क्यों खोले हैं। वो इसके पास जाता एक एक करके टैप बंद करते बोला। इतने में वो खुद भी शावर के नीचे खड़ा भीग गया। मुझे नहीं पता कैसे ऑन हुए। वो लरसते हुए सीने पे बाजू बांधे बोली। उसे बुरी तरह ठंड लग रही थी। साथ फरजाद ने बंद कर दिए थे। पलट कर उसे देखा जो सर से पैर तक मुकम्मल भीगी ठंड से लरज रही थी। बाहर जाओ और ड्रेसिंग में मौजूद हैं, कपड़े वहाँ जाके चेंज करो। वो थोड़ा नरमी से बोला। दिलकश ने हैरत से उसे देखा। उसे अपनी समाअत पे यकीन न आया। फरजाद और वो भी कहीं भी नरम लहजा। उसे लगा उसे सुनने में कोई गलती हुई है। अब क्या उसे देख रही हो। जाओ, वो वापस अपनी टोन में बोला तो दिलकश गहरा सांस भरते मुतमिन होती कदम दरवाजे की जाने बढ़ाए कि एकदम से पिछली फरजाद ने इसकी कमर में हाथ डाले उसे थाम लिया। ओह, ये तो फिल्मी सीन बन गया। दिल ही दिल में वो सोती फरजाद को देखने लगी जो इसकी कमर में हाथ डाले उस पे झुका उसे थामे हुए था। दिलकश तो बस उसे देखे जा रही थी। आज पहली बार वो उसे इतने करीब से देख रही थी। उसके नक्श बहुत प्यारे थे, बिल्कुल हीरो की तरह था। बस खड़ूस की जगह थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि फरजाद ने उसे एकदम से सीधा किया। होश में रह के चला करो। वो अपने दिल में उमड़ते जवां जज्बात को लगाम डालता खफकी से बोला, लेकिन इस बारिश की आवाज़ में सख्ती ना थी। उसके हसीन सुरापे से अपनी नजरें चुराने लगा था। मिस्टर हस्बैंड कुछ ज्यादा ही ताड़ रहे हैं मुझे। वो मुस्कुराई थी और ड्रेसिंग रूम में जाते ही अपने ढेरों ड्रेस देखती दंग रह गई थी। एक हल्का फुल्का सूट पहने वो बाहर आई तो फरजाद को बिस्तर पे नीम दराज देखते वो थोड़ा हिचकिचाई। पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ। अजीब साइको बंदा मिल गया है। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई थी। यहाँ आओ, बताता हूँ मैं कितना बड़ा साइको हूँ। वो उसकी बड़बड़ाहट सुन चुका था। दिलकश को यकीन न आया। नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं कहा। वो मिनमिनाते कौच पे जा बैठी थी। रोमांस का तो तुम्हें बहुत पता है, सुहागरात का भी काफ़ी आइडिया होगा, है ना। वह बिस्तर से उठता उसके करीब चला गया। उस पे झुका था कि वो काब्ज पे पीछे होती पीछे जा गिरी। नहीं, मुझे नहीं पता। वो धड़कते दिल से बोलती। इस हैंडसम लेकिन सड़ू शोर को देखती घबरा गई। चलो मैं बता देता हूँ, आखिर तुमसे 10 साल बड़ा हूँ, तुमसे ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ। बिस्तर पे चलते हैं, यहाँ मज़ा नहीं आएगा। उसे एक ही झटके में अपनी बाहों में उठा गया। दिलकश ने घबरा के उसके गले में बाजू फाइल किए। वो उसे लिए बिस्तर पे आया। अपनी शर्ट को उतार के दूर उछालता वो उस पे झुका था। दिलकश ने बेडशीट को मुट्ठी में दबोचा। दिल की धड़कनें सर पर दौड़ी थी। वो उसके चेहरे पे झुकता उसके चेहरे पे अपनी फिंगर से ट्रेसिंग करता माथे पे लबों तक लबों से गर्दन तक और फिर इसकी गहराइयों में जाने लगा कि दिलकश ने इसका हाथ रोक लिया। तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं कि तुम मेरा हाथ रोक सको, चुपचाप सब बर्दाश्त करो। वो उसका हाथ जोर से परे झटकता अपने काम में मसरूफ अमल हुआ। उसकी धड़कनों पे दस्तरी हासिल करता वो उसकी बंद आंखों से टूटते मोती गिरते तकिए में जज्ब होता देख रहा था। उसके चेहरे पे फैले कर्ब के तासुरात पे वो लब खींच गया और फिर इसके कान के करीब जा झुका।
तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो भी फरजाद हसन शाह तुम्हें अपनी गुर्बत में नहीं बख्शेगा, क्योंकि फरजाद शाह तुम्हें अपनी गुर्बत के काबिल ही नहीं समझता। वो सरगोशी के से अंदाज में घुराता एकदम पीछे हटा। दिलकश का वो हाल था जैसे किसी ख्वाब से जागी हो। उठो यहाँ से और वहाँ जाओ जहाँ तुम्हारी औकात है। उसे काउच की तरफ इशारा करते वो बुरे तरीके से धुतकार गया। वो अपनी शर्ट दुरुस्त करती आंखों में ढेरों आंसू लिए उठी थी कि उठते हुए लड़खड़ाई। वो बिस्तर पे गिरती कि फरजाद ने उसे बाजू से थामे सीधा खड़ा किया। ये ड्रामे किसी और के सामने करना, और उसे काउच की जानब धक्का दे गया। वो औंधे मुंह जाके उसके ऊपर गिरी, लेकिन वह सीधी न हुई। इसका दिल दर्द की शिद्दत से फटने वाला था। वो औंधे मुंह ही गिरी, रोती चली गई। अपनी कमाई का एहसास शिद्दत से जागज़ी हुआ। अम्मी, आपने कहा एक दिन मुझे एहसास होगा कि आपका ये फैसला मेरे हक में बहुत अच्छा होगा, पर आप देखें तो आपका भतीजा क्या सलूक कर रहा है मेरे साथ। बाकी रिश्तों में माँ बाप औलाद क्यों फरामोश कर देते हैं। वो शिद्दत करिया से हिचकियाँ ले रही थी। चुप करके सो जाओ, वरना मेरा दिमाग खराब हुआ तो रात वहाँ बाहर बालकनी में गुजारनी पड़ेगी। फरजाद के करख्त आवाज़ पे वो अपने मुंह से पे हाथ रखे अपनी हिचकियों का गला घोंट गई। रात धीरे धीरे बीतती जा रही थी। सब कुछ इतना आसान ना था जितना उसने सोचा था, और सबसे ज़्यादा मुश्किल तो उसे अब पेश आने वाली थी, क्योंकि वो मासूम फरजाद हसन को अपने दिल में बसा गई थी, इसकी दिलो जान से हो गई थी। अब उसका ये रवैया उसकी जान ले रहा था। वो बहुत परेशान थी, पर एक बात तो तय थी, वो मर जाती लेकिन कभी अपने दिल को खोल के इस बेहिस शख्स को सामने ना रखती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फजर की अजान कानों से टकराई तो इसके वजूद में हल्की सी जंबिश हुई। वो बिना किसी कंफर्टर के रात भर कौच पे सोई रही। ठंड से पूरा कमरा खुशी लिए हुआ था। इसका पूरा जिस्म जैसे अकड़ गया था। उसने बमुश्किल आंखें खोली, लेकिन आंखों के पपोटे भारी हुए। सर में शिद्दत की टीस उठी। वो कराही थी, बमुश्किल करवट लेती सीधी हुई। ऐसा सलूक तो कोई दुश्मनों से भी नहीं करता था। वो भारी होते सर के साथ उठी, लेकिन इसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। नजर बेड पे गई, जहाँ पे वो बेहिस हिटलर ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहा था। दिलकश का एक तो जी चाहा कि इसका गला दबा दे, लेकिन वो छोटी सी कमजोर सी इतनी बड़ी जिसामत वाले मर्द से कहाँ पूरी डाल सकती थी। खुद को संभालते वो बाथरूम का रुख करके वजू करने चली गई, नमाज अदा करने लगी। अल्लाह जी, इस शख्स को तूने मेरे नसीब में लिखा है, इसके दिल में भी मुझे लिख दे। वो न जाने कैसी दुआ मांग रही थी, पर उसे अब फरजाद इससे मोहब्बत नहीं, जुनून की हद तक इश्क होने वाला था, और इस इश्क ने उसे खूब रुलाना था। नाश्ते की टेबल पे सभी मौजूद थे। फरजाद सीढ़ियाँ उतरता नीचे आ रहा था। उसके पीछे ही ढीले ढाले कदमों से उतरती दिलकश दिखाई दी। उसका सता हुआ चेहरा देखते तबस्सुम बेगम के चेहरे से मुस्कान सिमटी थी। क्या इनमें से कोई गलत फैसला किया गया है? उनके दिल पे जैसे किसी ने बुरी तरह वार किया हो। माँ थी, बेटी के चेहरे पे मौजूद दर्द को बआसानी पढ़ गई। इनके दिल में दर्द की टीस उठी और वो वहीं चकराते जमीन बोस हुई। अम्मी, दिलकश की चीख गूंजी। सभी उसकी नज़रों की सीध में देखने लगे। दरवाजे की दहलीज पे तबस्सुम बेगम बेहोश हो गई। दिलकश को लगा कि इसके जिस्म से किसी ने रूह खींच ली। फरजाद एक मिनट की देरी किए बिना इसकी जानिब लपका। उसकी नब्ज चेक की, जो बहुत ही धीरे चल रही थी। वो फौरन उन्हें अपनी बाहों में उठाए बाहर भागा। हसन साहब भी इसके पीछे ही बाहर लपके थे, जबकि दिलकश अभी भी वहीं सख्ते में खड़ी थी। उसका दिमाग एक ही नुक्ते पे अट गया था। मेरी अम्मी मुझे छोड़ के चली गई। सुल्ताना बेगम ने आगे बढ़ के दिलकश को संभाला तो वो उनके गले लगे फूट फूट के रो दी। तबस्सुम बेगम को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। उनका बीपी खतरनाक हद तक शूट कर गया था। डॉक्टर्स
अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। फरजाद दिल ही दिल में बुरी तरह से बेचैन था। इनकी नज़रें वो दिलकश बेचैन देखते वहीं समझ गया था वो दिलकश के लिए टेंशन लेती बेहोश हुई हैं। अंदर ही अंदर उसे कहीं गिल्ट सा महसूस हुआ। आपको पेशेंट अंदर बुला रही हैं। अचानक से डॉक्टर की बात पे वो चौंका था। हसन साहब ने उसे कंधे पे थपकी देते हुए अंदर भेजा और वो उसकी तबस्सुम बेगम से आखिरी मुलाकात थी। वो अपनी बेटी से ना मिलने की कसक लिए इस दुनिया से चली गई। फरजाद ने इसकी आंखें बंद किया कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो दुखी दिल से बाहर आता बाप को खबर देता उन्हें रुला गया। अभी तो सबसे मुश्किल मरहला तय करना था। दिलकश को संभालना था जिसने अपनी माँ की खातिर ये शादी की थी। फरजाद को ये सब बहुत मुश्किल लग रहा था। मैयत को घर लेके आए तो हवेली में एक कोहराम मच गया। अचानक से तबस्सुम बेगम की डेथ ने सबको हिला के रख दिया। बेटा दिलकश को संभाल लेना, वह नहीं सह पाएगी। सुल्ताना बेगम ने फरजाद के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा तो उसका ध्यान एकदम से दिलकश की जानिब चला गया जो अंदर रूम में थी। वो सीढ़ियाँ तेजी से चढ़ता ऊपर कमरे में गया जहाँ वो जाए नमाज बिछाए अपनी माँ की सलामती की दुआएं मांग रही थी। फरजाद को अंदर आता देखकर वो दिल बड़ा करती और उसके पास आई। मेरी अम्मी, उसके लहजे में इसकी आंखों में एक उम्मीद थी। फरजाद ने इसका हाथ थामा, सर नफ़ी में हिलाया। वह बौखलाते हुए अपना सर उसके हाथ से झटक गई। मेरी अम्मी, दिलकश पिंक हो रही थी। फरजाद ने उसे अपने सीने से लगाना चाहा लेकिन वह चीख मार कर रोई और फिर रोती चली गई। फरजाद उसे अपने सीने से लगाए भी आंसू बहा रहा था। उसे संभालना फरजाद के लिए बस की बात नहीं थी। वो आपे से बाहर होती खुद को भी तकलीफ दे रही थी और उसे भी। लेकिन ये वक्त भी गुजर जाना था। ये गहरे जख्म दे के जाना था। आज तबस्सुम बेगम की डेथ को 2 हफ्ते हो गए थे। दिलकश काफ़ी हद तक संभल गई थी जिसमें ज़्यादा हाथ सुल्ताना बेगम का था। उन्होंने उसे बिल्कुल बच्चों की तरह संभाला था। अभी भी वो हवेली के इस हिस्सा में थी जहाँ इसकी माँ रहती थी। उसे अपनी माँ की खुशबू महसूस हो रही थी। एक खास ताल्लुक बन गया था। वो माँ की डेथ के बाद ज़्यादा वक्त वहीं रहती थी। आज भी वो अपनी माँ के घर वाले हिस्से में बैठी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और फरजाद अंदर दाखिल हुआ और वो कुरान मजीद को अब गलाफ में रख रही थी। अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ मांगते वो कुरान मजीद को अपनी जगह पे रखते पलटी तो फरजाद इसके पीछे ही खड़ा दिखाई दिया। काफ़ी दिनों बाद उसे देख रही थी। इसकी आंखों में एक मलाल था, न जाने किस बात का। दिलकश ने टिकटिकी बांधे उसे देखा जो बिल्कुल खामोश उसके चेहरे को देख रहा था। यहाँ क्यों रह रही हो? उसके मुतवक्को सवाल पे दिलकश के चेहरे को तल्ख मुस्कान ने छुआ। अपनी हैसियत जानती हूँ, औकात नहीं आपके साथ रहने की, वो कहते हुए सर झुका गई। भूलो मत बीवी हो मेरी, निकाह में हो मेरे। वो 1 इंच के फासले पे आते आप भी जानते हैं ये निकाह सिर्फ आपकी ज़िद थी मुझे नीचा दिखाने की। वो आप कर चुके हैं, इससे ज़्यादा और क्या बुरा करेंगे? इसकी आंखों में पानी तैरने लगा। मेरे साथ ये फ़लसफ़ा झाड़ने की ज़रूरत नहीं, चलो। वो इसकी कलाई थाम गया। मुझे नहीं जाना आपके साथ। वो एकदम बेक हुई। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? वो इसकी तरफ मुड़ता गुस्सा ज़ब्त करते बोला। जबकि दिलकश अब खामोश रही। वो वैसे ही इसकी जान निकाल रखता था, ऊपर से इसका यूँ गुस्सा करना दिलकश को मज़ीद हिरासा करता था। चलो मेरे साथ। वो इसको ज़बरदस्ती वहाँ से लाता हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया था। फरजाद बेटा, सब ठीक है ना? उसकी फूफो मारिया ने रास्ता रोका। जी आप क्यों पूछ रही हैं? वो थोड़ा तल्ख हुआ जबकि इसकी पुश्त के पीछे दिलकश चुप सी गई थी। अरे बेटा, दिलकश की माँ अचानक ही इस दुनिया से चली गई। बहुत अफसोस होता है, बेचारी अकेली रह गई है। वो अफसोस से सर नफ़ी में हिलाने लगी। अकेली क्यों? वो आईब्रोज काटे बोला। मैं हूँ इसके साथ, इसका शोर, दादी शाह, बीबी, अम्मा, बाबा, हम सब इसके साथ हैं, अकेली नहीं है ये। वो एक एक लफ्ज़ पे जोर देता बोलता दिलकश का हाथ थामे पूरे हक से अपने साथ रूम में ले गया। जबकि मारिया फूफो लब भेज के रह गई। जो भी करना है इस रूम में
रह के करो, मुझे उस रूम से बाहर अब दिखाई न देना, वो सर्द लहजे में कह रहा था, जिसने दिलकश पे चुप होती एक तरफ काउच पे जा बैठी। वो ऐसी तो ना थी, वो हंसमुख, शौक व चंचल, शरारती, हंसना बोलना सब कुछ पीछे छोड़ आई थी। कल तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगा, पढ़ाई दोबारा शुरू करो, मुझे जॉब करनी है। अचानक इसका जवाब सुनता फरजाद चौंका और इसकी जानिब मुड़ा। क्या बोला? क्या करनी है? वो लिफ्ट पे हाथ रखे अपने गुस्से को साफ करते हुए बोला, मुझे जॉब करनी है। वो फिर से बोली, अच्छा क्या जॉब करनी है तुम्हें? बहुत मस्कराना अंदाज में बोला, जो दिलकश को बहुत बुरा लगा। जानती हूँ आप इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन आपकी एज तक पहुँच के काफ़ी ज़्यादा पढ़ लूँगी। उसने अपना दुखी दिल एक तरफ रखते हुए अपने हक में बोलना फर्ज समझा। जॉब के साथ पढ़ोगी? वेल डन, जॉब कौन सी मिलेगी तुम्हें? वो भी सिर्फ 12 पास करने पे। वो अब भी इसका मजाक ही उड़ा रहा था। दिलकश को यही महसूस हुआ, कहीं भी मिल जाएगी, छोटी मोटी जॉब कर लूँगी, लेकिन मजीद आपके टुकड़ों पे नहीं पलना मुझे। शट अप दिलकश। वो दहाड़ा था कि दिलकश एकदम सहम के पीछे होती चुप हो गई। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? वो उसके पास आता उसे अपने मुकाबिल खड़ा कर दिया। दिलकश की आंखें नम हुई। क्या ओल फोल सोचती हो? बीवी हो मेरी और आप मुझे बीवी नहीं मानते। वो फौरन उसकी बात अचक गई। बीवी ना मानता तो उस वक्त यहाँ खड़ी ना होती। दोनों ही में कोई भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार न था। आइंदा ये दिमाग में जॉब का ख्याल ना ही आए तो बेहतर है। मैं तुम पे किसी किस्म की कोई ना कोई पाबंदी लगाना नहीं चाहता। ना चाहता हूँ कि तुम मुझे मजबूर करो कि मैं कोई सख्ती करूँ। चची जान का ख्वाब था कि तुम ढेर सारा पढ़ो, इसलिए तुम्हें पढ़ना है, अंडरस्टैंड। और न जाने एकदम कैसे बोल गया। दिलकश ने सर उठा के उसे देखा। आपको कैसे पता? जितना कहा वो सुन लो, सवाल जवाब मत किया करो। वो नजरें चुराता बाथरूम का रुख करके चला गया। माँ की याद सीधा से आई तो वो आंसू ना रोक पाई। फरजाद ने इसका कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। सुबह खुद उसे कॉलेज ड्रॉप करता और वापसी पे ड्राइवर उसे लेने जाता। जिंदगी बहुत खामोशी से कटने लगी थी। दोनों एक कमरे में अजनबियों की तरह ना सही लेकिन मियाँ बीवी की तरह भी ना रहते थे। बस ज़रूरत के तहत बात करते थे। सभी घर वाले इससे चाहत और मोहब्बत करते थे। दादी और शाह बेगम तो इसको देख देख के जीते थे। नहीं पसंद करती थी तो मारिया पुप्पो को ये वो नहीं पसंद थी। इसकी नज़र में शायद उसने इनकी बेटी का हक खाया था। शाम के साए फैल रहे थे। सर्दी पूरे जोरों से थी। नवंबर का एंड था। बारिशें भी शुरू हो चुकी थी। मौसम भी ठंडा हो गया था। वो किचन में खड़ी गुलबानों के साथ पकोड़े बनाने में मसरूफ़ थी। सर्दी के मौसम में उसे पकोड़े बनाने का बहुत शौक चढ़ता था और तबस्सुम बेगम भी इनकी छोटी छोटी ख्वाहिशों से मुस्कुराया करती थी। आज घर पे कोई था नहीं। दादी, शाह बीबी, मारिया पुप्पो, बम्मा बेटी सुल्ताना बेगम और हसन शाह सभी गाँव गए हुए थे। वहाँ इनके जानने वालों की बेटी की शादी थी। सभी का जाना जरूरी था, लेकिन दिलकश पढ़ाई की वजह से ना जा सकी। जबकि फरजाद को ऑफिस में बहुत काम था, वो भी ना जा सका। वह पकोड़े लिए बाहर गार्डन में आई। सर्द हवाएं चल रही थी। फूलों की धीमी धीमी खुशबू को वो महसूस करती मुस्कुरा रही थी। शाम से रात होने को थी। सब मुलाजिम और मुलाजमाएं अपने अपने क्वार्टर में चले गए थे। वो पूरी हवेली में अकेली रह गई। एकदम से इसका दिल घबरा सा गया। बाहर बारिश पूरे जोर और शोर से बरस रही थी। वह रूम में नहीं जा रही थी। अकेले रूम में जाने से उसे खौफ महसूस होता था। वो बाहरी टीवी लाउंज में एलईडी लगाए बैठी वक्त गुजार रही थी और दिल बेचैनी से फरजाद के वापस आने की दुआ कर रहा था कि अचानक जोरदार बिजली चमकी और पूरी हवेली की लाइट्स बंद हो गई। हर सू अंधेरा छा गया। दिलकश दिल पे हाथ रखे अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। बारिश अभी भी बरस रही थी और थोड़ी थोड़ी देर बाद बिजली चमकती तो कुछ मंजर वाज़ेह होता। अब दिलकश का दिल खौफ से बुरी तरह भर गया। उसे दरो दीवार से खौफ आने लगा था। सारियाना और अकड़ एक तरफ रखते हुए वो फरजाद को कॉल मिला गई, लेकिन उसका नंबर बंद था। दिलकश को लगा उसे
हार्ट अटैक आ जाना है। बिजली फिर जोर से कड़की थी। वो चेंज मारते कमरे की जानिब भागी। दरवाज़ा खोले वो अंदर जाते गहरा सांस भरती काउच पे जा बैठी। सहमी हुई और उस वक्त छोटी सी बच्ची ही लग रही थी। काश मैं भी साथ ही चली जाती, यूँ अकेली न होती। मोबाइल की हल्की रोशनी में वो बाकायदा कामती रोए जा रही थी कि तभी दरवाज़ा खुला। दिलकश का सांस भी थमा। आज वो काफ़ी लेट हो गया था, ये जानते हुए कि हवेली में इस वक्त दिलकश अकेली है। फिर भी वो ऑफिस से वक्त पर ना निकल सका। अब रास्ते में बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम थी। मोबाइल पर चेक किया तो बैटरी लो, ये सब कुछ एक ही साथ ही होना था। आज अपनी लापरवाही पे फरजाद को गुस्सा आया था। बेख्तियार उसे दिलकश का ख्याल आए जा रहा था। न जाने क्या कर रही होगी उसके लिए। इसके दिल में अजहद परेशान हो रहा था। अल्लाह अल्लाह करके जैसे ही वो हवेली पहुंचा, गप अंधेरा था। रमजान, असमत, खैरदीन वो सब मुलाजमों को आवाज़ दे रहा था, लेकिन उस वक्त वहाँ चौकीदार के अलावा कोई नहीं था। शाह साहब अचानक से खैरदीन बारिश में भीगता हुआ भागा बाहर आया। ये हवेली में अंधेरा क्यों है? शाह साहब यूपीएस इस तरफ काम नहीं कर रहा, जनरेटर ऑन कर रहे हैं, शायद इसमें भी कोई मसला है, थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। खैरदीन ने तफसील से आगाह किया। फौरन सब ठीक कराओ, वो ऑर्डर देता अपने गीले बालों में हाथ फेरता अंदर की जानिब बढ़ गया। मोबाइल की रोशनी ऑन करते वो सीधा कमरे में आया। उसे अंदर आता देखकर दिलकश जो सहम के काउच पे चुपी बैठी थी, फौरन उठती उसके सीने से जा लगी। वो जो इसके लिए परेशान था, उसे यूं अपने सीने से बेधड़क लगते देखकर वो उसके गिर्द अपना हिसार बना गया। एक ठंड से उतरी थी, दूसरी दिल में, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाया। दिलकश क्यों रो रही हो? वह उसे अपने सामने करते फिक्रमंदी से पूछ रहा था। मुझे डर लग रहा था। कोई भी नहीं, वो हिचकियों से बोली, जबकि फरजाद को देखकर इसके अंदर सुकून ही सुकून भर गया था। शायद कुछ नहीं हुआ, कोई डर नहीं, मैं हूँ ना, यही हूँ तुम्हारे पास। और अपनी आदत के बरक्स उसे अपने साथ लगाए उसके आंसू पोंछता तसल्ली दे रहा था। अंधेरा हो गया है और बारिश भी। वो उसका हाथ थामे बोली। तभी फिर से बिजली कड़की। वो फिर से चीख मारती उसके सीने में छुपी। उसका यूं बार बार अपने सीने समाना महसूस करते फरजाद के दिल के तार छिड़े थे। जवां मर्द था और कमसिन बीवी, महरम थी और पूरा हक रखता था। इतने अरसे से दूरी बनाए हुए था तो सिर्फ अना और जिद में, लेकिन तबस्सुम बेगम के जाने के बाद वो सब कुछ खत्म कर गया था। वो खुद भी नहीं जानता था वो उसे बहुत अजीज हो गई थी। उसके आंसू फरजाद के दिल पे गिरते थे। अभी वो उसे मजीद कुछ कहता। लाइट्स ऑन हो गई। वो आ गई लाइट। वो मुस्कराया था कि इसका डर खौफ जाहिल हो सके। वो भी थोड़ा हिचकिचाती पीछे हट गई। मैं तो गीला था, तुमने भी खुद को गीला कर दिया, चेंज कर लो वरना ठंड लग जाएगी। वो उसे नर्म निगाहों से देखता कबर्ड से अपना ड्रेस निकालने लगा तो वो खजल सी होती खुद भी इसके पीछे कबर्ड की जानिब बढ़ी। वो डर जो थोड़ी देर इसकी रूह में सराहत कर गया था, अब फरजाद के होने से वो कहीं दूर जा सोया। मुसलसल चीखते हुए अब वो तंग पड़ गया था। ये लें, फरजाद जो लैपटॉप पे काम कर रहा था और ठंड लगने से चीखे भी जा रहा था, अपने पास दिलकश की आवाज़ सुनते वो सर उठा के उसे देखने लगा। ये वो इसके हाथ से गर्म दूध का गिलास लेना थोड़ा मुस्कुरा के हैरान हुआ। आपको ठंड लग गई है ना, ये पिएं, फिर मेडिसिन ले लें और रेस्ट करें। आज वो बिल्कुल बीवियों की तरह बिहेव कर रही थी। फरजाद को इसका ये ख्याल करने वाला अंदाज बहुत अच्छा और अलग अलग लग रहा था, जैसे वो एक मैच्योर लड़की को अपनी ज़िंदगी में चाहता था। मैच्योरिटी जाहिर कर रही थी, पर वो मुस्कुराई क्यों नहीं थी? वो उसे तंग भी नहीं करती थी, शरारतें भी नहीं करती थी। फरजाद ये सब मिस करता था, लेकिन ज़बान से कुछ नहीं कहता था। थैंक्स, वो इससे दूध लेता लबों से लगा गया। उसे काफ़ी सुकून मिल रहा था। आपको रेस्ट करनी चाहिए। बाहर बारिश का जोर टूट गया था। रूम हीटर ऑन था। कमरा अच्छा खासा हीट अप हुआ था, इसलिए अब उन्हें ठंड बिल्कुल नहीं लग रही थी। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? फरजाद ने बातों का रुख मोड़ा। ठीक है, वो मुंह बनाते बोली। कोई मसला तो नहीं? वो इसकी बेतवजही देखता थोड़ी देर सोचने लगा। मसला तो है, मैं पढ़ाई के साथ जॉब भी करना चाहती हूँ,
पर मुझे ये भी पता है आप इजाज़त नहीं देंगे। वो दिल महसूस करके रह गई। तुम जॉब क्यों करना चाहती हो, जबकि मैंने कहा है ना कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। फिर जानती हो, लेकिन मुझे शौक है ना, मैं सीखना चाहती हूँ, वो पुरजोश अंदाज में बोली। वह पुरसोच अंदाज में उसे देखने लगा। ठीक है, फिर अपना ऑफिस ज्वाइन कर लो, वो फैसला करता बोला। अपना ऑफिस? हाँ, अपना ऑफिस। मेरे साथ ऑफिस चलो। सिंपली सुबह कॉलेज जाओ, शाम को ऑफिस आ जाया करो, और इसकी आसानी के लिए सारे मसले ही हल कर गया। आप सच कह रहे हैं? आप वाकई मुझे अपने ऑफिस में? वो बेयकीन हुई। मम, मैं इसमें इतना। वो फिर से चीख मारते टिश्यू से अपना नाक साफ करता उसे देखने लगा। आप सारी बातें छोड़ें, प्लीज़ उठें, रेस्ट करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं। वो इसके हाथ से लैपटॉप लिए एक तरफ रखते उसका हाथ थाम गई। फरजाद ने उसे कलाई से थामे खींचते अपनी गोद में बिठा लिया। वो धड़कते दिल से उसे देखने लगी। दोनों की नज़रों का गहरा तसादम हुआ। अगर इतना ख्याल करने लगोगी तो इस दिल को बेकाबू होने से बचा नहीं पाओगी, वो गंभीर लहजे में कहता उसके बालों को कानों के पीछे रहते हुए गहरी निगाहों से देखते हुए बोला। दिलकश का दिल पूरी तरह से धड़का, पलकें भारी हुई थी। वह उसे बहुत मज़े से गोद में लिए बैठा निहार रहा था। आपको नींद नहीं आई? वो इसकी नज़रों से बदल होते बोली। आज सोने का जी नहीं चाह रहा। वो उसकी कमर पे अंगुलियों से ट्रेसिंग करता गंभीर लहजे में बोला। दिलकश का दिल पसलियों से टकरे मारने पागल होने को था। घबरा क्यों रही है? वो उसे थोड़ा करीब करते सीने से लगा गया। नहीं तो वो घबरा भी रही थी, लेकिन मान भी नहीं रही थी। अगले ही पल वो उसे अपनी गोद में भर गया। फरजाद, आपकी तबीयत? वो इसके गले में गेंद बाहें हायल करते शर्माते हुए बोली। तुम हो ना ठीक करने के लिए। वो जैसे ही आज बेखुद हो रहा था, अपने मुकाबिल लड़की की कुर्बत का नशा सर चढ़कर बोल रहा था। वो उसे बिस्तर पे लिटाता उसका दुपट्टा उतार के एक तरफ कर गया। फरजाद, वह मिनमिनाई, लेकिन वो सुर्ख आंखों से उसे देखता उसके माथे पे देखते हुए लब रख गया। दिलकश ने बेअख्तियार इसका माथा छुआ और फिर इसकी गर्दन पे हाथ रखा। उसका ठंडा हाथ अपनी गर्दन पे महसूस करते वो गहरा सांस भरते अपनी आंखें मैच गया। इसके हाथ का लम्स अपने मजीद मदहोश करने लगा। फरजाद, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मेरे हाथ दर्द की दवा तुम हो। वो उसे आंखों के रास्ते दिल में उतार रहा था। उसकी नाक के साथ रबकी के अगले ही पल फिर से छींक आई। वो साथ तकिए पे गिरता छींकते दूर हटा। आप अपनी हालत देखें और रेस्ट करें। वो उठ के इसके पास होती हुई खफगी से बोली। हरगिज नहीं, मुझे आज तुम्हें चाहिए हर हाल में। वो इसकी कमर में हाथ डालता उसे अपने ऊपर गिरा गया। इसकी धड़कनों को अपने सख्त सीने से मस करता महसूस करता हुआ वो मुस्कुरा दिया। उसे मुकम्मल अपने ऊपर किए वो सार में ले गया। आपके अंदर हिम्मत नहीं है और आप, वो गलती से गलत अल्फाज कहती अपने पैरों से खुद कुल्हाड़ी मार गई। डोंट अंडर एस्टिमेट मैन पावर, वो कहते हुए इसकी सांसों को एकदम से ही चुरा गया। दिलकश सांस भी न ले पाई और बुरी तरह इसकी सांसों से लिपट गया था। साथ दो मेरा। जरा सा होंठ को पीछे करता वो इसके फराक की जिप खोलता हक जताने वाले अंदाज में बोला, जबकि वो तो अपनी बढ़ती धड़कनों को ही शुमार नहीं कर पा रही। साथ दोगी तो कम अग्रेसिव रहूँगा, वरना मुझे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। वो इसकी धड़कनों पे लब रखता उसको आंखों को नीचे मेलते हुए मजबूर कर गया। फरजाद, वो टूट कर उसका नाम बार बार लिए उसे मजीद मदहोश कर रही थी। कुछ बुखार का असर था, कुछ कुर्बत का नशा। वो बहकता जा रहा था। उसकी ब्यूटी बोन पर लब रखे तो एक सिसकी भर के रह गई। ऊपर से वो अपनी शर्ट उतारता दूर चल गया। उसका बदनसीना देखते दिलकश ने अपना चेहरा छुपा लिया। शर्म से दरी हुई जा रही थी। उसके हाथों को उसके चेहरे से हटाता उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां उछालते वो उसकी ठोड़ी पे लब रखता उसके लबों को वो कस कर गया। वो अपना सांस लेने में ही रुक गई। उसका पूरा जिस्म तपा हुआ था जैसे दहकता अंगारा। पल में वो दोनों पसीने से नहा गए थे। फरजाद के जिस्म से पसीना गिरते उसे निढाल कर रहा था, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हट रहा था। जैसे आज वो दिलकश को तस्खीर करके ही अपना दम लेना चाहता था। वो जो उसके
ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ اس کی روح میں سمانا اس کو اپنے سینے میں کھینچ گیا۔ وہ اس کی خراب طبیعت کی وجہ سے اس کے لیے فکر مند ہو رہی تھی، لیکن وہ یوں تھا جیسے دہتا انگارہ بنا ہوا تھا۔ لیکن اس کے عمل نے دلکش کو بوکھلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ جیسے اپنے ہوش میں تھا ہی نہیں۔ وہ جس قدر اس میں سما رہا تھا، دلکش کی سسکیاں اور آہیں بڑھتی جا رہی تھی۔ گہرا سانس بھرتا وہ اسے لپٹا کے خود نیچے ہوتا اور اسے اپنے سینے پہ کر گیا۔ ٹھیک ہو دل؟ وہ آنکھیں میچے سینے میں بھینچے محبت سے لبریز لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اپنی جراثیمی حالت کے باوجود وہ لرزتے جسم کے ساتھ ذرا سا سر اٹھائے اس سے پوچھ رہی تھی۔ تم نے جو مجھے سکون دیا ہے، اس کے بعد میں بالکل پرسکون ہو گیا ہوں۔ اور اس کے ماتھے پہ لب رکھے محبت سے آنکھیں نگاہ کرتے بولا۔ وہ شرما کے اس کے سینے میں چھپ گئی۔ وہ اس کے بالوں پہ لب رکھ گیا۔ اللہ نے واقعی میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے میں سکون پوشیدہ رکھا ہے۔ اس بات کی سمجھ پہلے کبھی نہیں آئی۔ آج تم قریب آئی ہو تو احساس ہوا ہے تم میں واقعی سکون ہے۔ بہت بے چین تھا میرا دل۔ وہ اسے دل کہہ کے مخاطب کر رہا تھا اور اس کے بار بار دل کہنے پہ دلکش کا دل بار بار دھڑک رہا تھا۔ پر آج تم نے اسے پرسکون کر دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ اس کی پلکوں سے باری باری لب رکھتا شکریہ ادا کر رہا تھا، جبکہ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ وہ جو آگ کی بھٹی بنا ہوا تھا، اب کافی ٹھنڈا اور نارمل ہو گیا تھا۔ آپ آرام کریں فرجاد، آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک؟ میں ٹھیک ہوں میری جان، بس تمہیں ہگ کر کے سونا چاہتا ہوں۔ وہ گمبھیر لہجے میں نیند میں جاتے ہوئے بولتا کروٹ لیتا اپنے سینے سے لگائے اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ دلکش کو لگا جیسے وہ بخار کے زیر اثر ہوتا کچھ بھی بولے جا رہا تھا۔ شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے، اور یہی شخص جب صبح اٹھ کے ہر بات سے مکر جانے والا تھا، تب دلکش کے دل پہ کیا بیتنے والی تھی، یہ وہی جانتی تھی یا اس کا اللہ؟ صبح دونوں کافی دیر تک سوتے رہے۔ فرجاد کی ہی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے کسمسا کے اپنے پاس سوئی ہوئی دلکش کو دیکھا۔ ایک پل کو تو اسے سمجھ نہ آیا وہ اس کی شرٹ پہنے کیوں اس کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے۔ ذہن پہ کافی زور دیا لیکن اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس کا سر درد کی شدت سے پھٹنے لگا۔ دھیرے سے دلکش کا سر اپنے سینے سے ہٹاتا کمفرٹر پیچھے کرتا اٹھا، لیکن اگلے ہی پل ٹھٹک کے رکا۔ وہ صرف بازو ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ الٹ کے دلکش سے کمفرٹر ہٹایا تو دلکش صرف اپنی ہی وائٹ شرٹ میں دکھائی دی۔ اس کی بکھری ہوئی حالت ساری کہانی سنا رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے فرجاد کو کچھ بھی یاد نہ تھا۔ وہ اپنے ذہن پر زور ڈالتا اٹھتا باتھ روم میں گھسا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دلکش کے قریب بھی جا سکتا ہے۔ شاید رات کو طبیعت بہت خراب تھی، مجھے ہوش نہیں رہا، لیکن وہ ہوش میں تھی۔ اس نے مجھے کیوں نہیں روکا؟ شاور کے نیچے کھڑا وہ گلاس وال پہ منہ برسا گیا۔ وہ باہر آیا تو دلکش جاگ چکی تھی۔ وہ اپنا ڈریس پہن رہی تھی۔ جب فرجاد کو روم میں آتا دیکھا اس کے ہاتھ گئے۔ دل کی دھڑکن بھی تیز ہوئی، لیکن فرجاد اسے نظر انداز کرتا کبرڈ سے اپنا ڈریس لیتے ڈریسنگ روم میں بند ہوا۔ اس کا یہ انداز دیکھتے ہی اس کا دل کسی انہونی کے انداز میں دھڑکا۔ فرجاد، فرجاد رکیں، میری بات سنیں۔ وہ جو شاور لیتی باہر آئی، لیکن فرجاد کو روم میں نہ پا کر باہر آئی تو وہ آفس جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ اس نے فرجاد کو پکارا تو وہ ایک پل کو رکا، اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ بنا کوئی بات کیے جا رہے ہیں؟ ناشتہ بھی نہیں کیا؟ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی، دھیرے سے بولی۔ پہلی بات دلکش، میرے ساتھ بیویوں کی طرح بیہیو کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات، تم اچھے سے جانتی ہو میں اپنی مرضی کا مالک خود ہوں، اس لیے مجھے مت بتاؤ کہ پھر تو آپ رات کی ہماری ویڈنگ نائٹ بھی فراموش کر چکے ہوں گے۔ وہ نم لہجے سے بولی۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی چھا گئی۔ میرا نہیں خیال کوئی زور زبردستی ہو گئی ہوگی اور تم نے کوئی آرگیومنٹ کیا ہوگا۔ اس کے لیے مجھے کسی قسم کا بلیم مت کرنا کیونکہ میں ہوش میں نہیں تھا۔ پر تم ہوش میں تھی، مزاحمت کر سکتی تھی، لیکن آپ کو دیر ہو رہی ہے فرجاد شاہ، آپ کو جانا چاہیے۔ سپاٹ انداز میں دل پر پتھر رکھے بولی۔ اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہ تھا، ٹوٹے خواب کی کرچیاں، درد کرب، لیکن افسوس نہیں تھا۔ فرجاد پلٹتا باہر نکل گیا اور پلکوں پہ ٹھہرے آنسو گالوں پہ بہہ نکلے۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ فرجاد اتنی جلدی
सब फरामोश कर देगा। लेकिन अब वो सोच चुकी थी, मरती मर जाएगी लेकिन कभी इस शख्स के नजदीक नहीं जाएगी। मर्द था ना तोता चश्म बन गया। सच कहते हैं औरत मर्द से बहुत जल्द असर करती है और मर्द दिनों में नहीं घंटों पे पागल हो सकता है, जबकि मर्द औरत पे बहुत देर बाद असर करता है और इतना गहरा असर करता है कि वो सारी जिंदगी संभल नहीं पाती। यही वजह थी कि इस दिन के बाद से फरजाद तो उसे अपनी लाइफ में ऐसा बिजी हो गया कि वो भूल ही गया कि कोई दिलकश नाम की लड़की उसकी बीवी भी है। वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर मुल्क चला गया। सब घर वाले अब भी उतनी ही इज्जत और प्यार देते थे, लेकिन उसके अंदर क्या कुछ टूट चुका था सिर्फ वही जानती थी। और इन्हीं दिनों की उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। सुल्ताना बेगम उसे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले गई तो उनका शक सही निकला, वो प्रेग्नेंट थी। सभी बहुत खुश हुए और सदका खैरात तकसीम किया, पर दिलकश ने सबको अपनी कसम दे के मना कर दिया कि कोई भी फरजाद को ना बताए, वो खुद उसे सरप्राइज़ देगी। और जब वो वापस लौटा तो सब कुछ धरा का धरा रह गया। उसके साथ हवेली के अंदर दाखिल होती लड़की को देखकर सभी दंग रह गए। ये कौन है फरजाद? दाजी ने आगे बढ़ के कड़कदार लहजे में पूछा। नैना, मेरी दोस्त और होने वाली बीवी। उसके अल्फाज ने सबको हक्का-बक्का कर दिया। तुम होश में हो फरजाद? क्या बोल रही हो? दिलकश दिलकश भी मेरी बीवी है। मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन नैना मेरे मिजाज के मुताबिक फ्रेंड है तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ 2 शादियाँ, इसलिए मेरा नहीं ख्याल किसी को एतराज़ होना चाहिए। वो सख्त लहजे में कहता हुआ एक गहरी निगाह दिलकश पे डालता रुक फेर गया। दिलकश की आंखें नम हो गई, लेकिन चेहरे पर एक जख्मी मुस्कान ने इहाता किया। मैं तुम्हें बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगा फरजाद। दाजी गुस्से से भड़के। मुझे आपकी इजाज़त नहीं चाहिए दाजी। मैं छोटा सा बच्चा नहीं हूँ, अपना अच्छा बुरा खुद सोच समझ सकता हूँ, वो कतई अंदाज में कहता। नैना की जानिब बुल नैना को गेस्ट रूम में छोड़ा, पास खड़ी मुलाजिमा से कहा, तो वो नैना को लिए वहाँ से गेस्ट रूम की जानिब बढ़ गई। तुम गलत कर रहे हो, हसन साहब ने अफसोस से सर हिलाया। मुझे पता है बाबा, मैं क्या कर रहा हूँ। इतना कहता वो सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। और तब सबको दिलकश ने अपनी कसम देकर इस मामले में चुप रहने को कहा। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी फरजाद की खुशियों में रुकावट बने, और उसकी प्रेगनेंसी की खबर किसी ने भी फरजाद को देना ज़रूरी ना समझा। उसने सबका दिल दुखाया था। वो सबको इसके लिए राज़ी करती रूम में आई तो वो हमेशा की तरह लैपटॉप पे काम कर रहा था। बेध्यानी में ड्रेसिंग के सामने खड़े होते उसका हाथ अपने पेट को छू गया। इस खुशी को महसूस करके वो जी उठी थी, लेकिन फरजाद ने उसे फिर से मुर्दा कर दिया था। बहुत मसला है सबको मेरी दूसरी शादी से, यकीनन तुम्हें भी। वो एक आईब्रो अचकाते बोला तो दिलकश मुस्कुराते हुए उसके पास जा खड़ी हुई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बहुत पहले ही अंदाजा हो गया था कि आप एक दिन दूसरी शादी जरूर करेंगे। खैर, कोई भी मसला क्रिएट नहीं होगा। आप अपनी शादी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। ये कमरा भी बहुत जल्द खाली कर दूंगी। वो एक नज़र कमरे को देखती खालीपन से बोली थी। तुम्हें किसने कहा नैना रुखसत होके इस कमरे में आएगी? उसके लिए ऊपर अलग पोर्शन बनवा रहा हूँ। डोंट वरी, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। काश इसकी बात पे बेख्तियार दिलकश के लबों से निकला। नहीं, अब जा नहीं रही फरजाद। मैं सब कुछ छोड़कर पीछे हट रही हूँ। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं, वो सख्त लहजे में कहती पलट गई, जबकि उसका ये अंदाज देखता फरजाद थोड़ा उलझा। घर भर में नैना और फरजाद की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। सुल्ताना बेगम के साथ जाके उसने नैना के लिए खूब शॉपिंग की। इसकी मेहंदी, बारात, वलीमा, सब के लिए ड्रेसेस, ज्वेलरी एक से बढ़ के एक खरीदा। सुल्ताना बेगम उसे यूं देखकर बस रो देती। ताई अम्मी जानती हैं, हर लड़की का अरमान होता है उसकी मेहंदी हो, बारात आए, उसे दूल्हा लेकर जाए, लेकिन
सब के अरमान पूरे नहीं होते। वो दुखी दिल से बोलती मुस्कुरा भी रही थी। नैना इस लड़की का हौसला देखती दिल ही दिल में गिल्टी महसूस कर रही थी। कल मेहंदी थी और सब तैयारी खुद दिलकश ने की। नैना की मेहंदी भी इसने लगाई। इसकी हथेली पे फरजाद का नाम लिखते एक आंसू पलक से गिरा था, जैसे वह बहुत तरीके से साफ कर गई। मैं आती हूँ, अब बर्दाश्त हद से बढ़ गई है। तो वहाँ से उठ गई। सब कुछ छोड़ के वो छत पे चली गई। वो रोना चाहती थी, अकेले में छुप के, न रोती तो घुट घुट के मर जाती। रात की तन्हाई में अकेले वो छत पर बैठी, घुटनों में सर छुपाए बिलख बिलख कर रोती माँ को याद कर रही थी। आज वो खुद बहुत अकेला महसूस कर रही थी। काश अम्मी आप आज जिंदा होती, देखती आप, कितना अच्छा फैसला था आपका। वो अपनी हथेली को देखती हिचकियाँ ले रही थी, जिस पे फरजाद के नाम की मेहंदी लगाने की उसे हसरत ही रह गई। रो के दिल का बोझ हल्का करके वो आंसू पूंछते उठी थी कि बुरी तरह चकरा के पीछे गिरी। पर उसी लम्हे फरजाद ने ऊपर आते ही उसे गिरते देखा तो फौरन थाम लिया। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, पर खुल नहीं रही थी। वो उसे अपनी बाहों में भरे नीचे ले आया, रूम में लाता, उसे थपकियां देता होश दिलाने लगा। उसे पानी पिलाया तो कुछ होशो हवास जागे। मालूम भी है इस हाल में हो, फिर क्यों अकेली छत पर जाके मातम मना रही थी। वो उसे गुस्सा से डांट दिया। इसकी बात सुनती वो चौंकी। क्या फरजाद को पता लग गया? ऐसे क्या देख रही हो? बंदा जरा अपने कान और आंखें खुली रख ले तो न खुद अजियत का शिकार हो न दूसरे गिल्ट में जाए। वो इसकी कमर में हाथ डाले उसे अपने सीने से लगा गया। पागल फरजाद शाह की जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की रह सकती है, दिलकश, मेरी जिंदगी का नूर। अब इस नजरों से ना देखो मुझे। वो उसकी कहने पे लब रख गया। वो नैना दिलकश उलझी। ये आज की मेहंदी है और कल निकाह, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। बुद्धू, मैंने तो वो सब नाटक किया था। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई तो मैंने सोचा तुम्हें भी थोड़ा सबक सिखाऊं। वो उसके लबों पे अपने होंठ मस करता। आप झूठ बोल रहे हैं, सच कह रहा हूँ। सबको पता लग गया था हवेली में, सिवाय एक तुम्हारे, क्योंकि तुम कान और आंखें सी के बैठी थी। वो उसके सर पे हल्की सी चुटकी लगाते पार से बोला था। मतलब आप नैना से शादी नहीं कर रहे? वो अभी यकीन नहीं कर रही थी। क्या स्टॉम्प पेपर पे लिख के दूं? एक मिनट। वो उसे पीछे बैकग्राउंड से लगाता, उसकी शर्ट धीरे से अपने ऊपर करता, उस पहली को वापस से छूता, उसे अपने लब रख गया, जो इतने दिनों से रात को उसके सोने के बाद ये सब किया करता था। आज दिल से उसे एहसास दिला के उसे अपने लब से महका रहा था। दिलकश के पेट में तितलियां रक्स करने लगी थी। वो अपने लम्स से उसको महकाता चला जा रहा था। दिलकश आंखें बंद किए इसका लम्स अपने पेट पे महसूस करती गहरे सांस भर रही थी। वो अपने लबों पे उसे महकाता इसकी धड़कनों से इसके चेहरे पे आया। कितना इंतजार किया मैंने कि शायद आप बता दो, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया और आप उसको साथ ले आए। वो निरूठे अंदाज में बोली, वो प्लान बात का है, तुम प्रेग्नेंट पहले ही हुई थी। वो अब की बार माथे पे बल डाले बोला, मैं तो सरप्राइज देने वाली थी। मेरा सरप्राइज कैसा लगा? वो उसके लबों को छूता